हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम सीएसएस पढ़ रहे हैं। हम इंट्रोडक्शन ऑफ यानी टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स, जिसमें हम एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ चुके हैं। अब हम यूनिवर्सल सेलेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। जितना पढ़ा रही हूँ उस पर बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। देखिए आप कितना आगे जाएंगे। Downloads row 2 column 2 4. Downloads 3 new items new list area dash programs not selected 1 of 15. दोस्तों, मैं 1 मिनट चार्जिंग पे लगा लेती हूँ फ़ोन। ओके। CSS2 area dash CSS items new list 2D not selected 1 of 15. Downloads items new list CSS2 of 15. W web notes 6 items new list running notes left paren 1 right paren C selected C CSS items new list attribute selectors in CSS not selected 1 of 41. Table in CFT, text effect T, text crop T, transform T, table in CSS 37 of 41. S, selectors in CSS 35 of 4. एलिमेंट आपने समझ लिया ना। पैराग्राफ के लिए पी, बॉडी, हेडिंग H1 H2, Selectors in जो CSS भी left parent protected, view टैग right यूज parent करेंगे dash आप उसके Microsoft Word साथ left parent product activation failed right उसका नाम parent लिखेंगे, Microsoft. फिर लेफ्ट ब्रेस देंगे, फिर जो भी आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है विद वैल्यूज वो लिखेंगे। ठीक है, वहाँ कोड की जरूरत नहीं होती। Select heading level 1, select heading level 1 selectors in CSS colon. ये आपको हमने पढ़ा दिया था। एक बार जल्दी से देख लेते हैं सब कुछ आज के ट्यूटोरियल में। Heading level 1 selectors in CSS colon. Selectors are used to find tags or elements in HTML to apply various style to them. Selectors are of various types semi, simple selectors, comma, combinator selector, comma, pseudo class selector, comma, pseudo element selector and attribute selector. क्या एट्रीब्यूट सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर एंड सिंपल सेलेक्टर्स। कितने सेलेक्टर्स हुए? एट्रीब्यूट सेलेक्टर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर एंड सिंपल सेलेक्टर। फिर सिंपल सेलेक्टर की अलग टाइप हुई, क्या क्या हुई? एलिमेंट सेलेक्टर, और उसके बाद यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर। ये किसकी टाइप्स हैं? सिंपल सेलेक्टर की। ठीक है। Heading level 2 impl selector colon. In सिंपल। simple selector tags or elements are selected based on their names, comma, ID or class dot ID selector, comma, class selector, comma, element selector, comma, group selector and universal selector are types of simple selector. Dot heading level 3 element selector colon. In element selector we select the tag or element name and by using properties and values we apply style to it. Dot it is similar to internal CSS. Dot heading level 4 syntax of element selector colon. Less than doc type HTML greater less HTML greater less head greater less title greater element selector in CSS less slash title greater less style greater body left brace background dash color colon yellow semi right brace H1 left कोट brace नहीं है text dash align यहाँ पर। colon center semi color colon red semi right brace H2 left brace color colon blue इंटरनल semi में font dash family colon Arial semi right brace P left brace पी font dash लेफ्ट size ब्रेस colon पैराग्राफ 14 सेलेक्टर है pt semi यानी एलिमेंट। H2 color colon pink semi right brace less slash style greater less slash head greater less body greater less H1 greater web development less slash H1 greater in web development we use different languages like HTML, comma, CSS, comma, area and JavaScript. Dot less slash p greater less H2 greater HTML less slash H2 greater less p greater HTML is the base language to create any website, comma. It is a combination of various tags and attributes. Dot less slash p greater less slash body greater less slash HTML greater heading level 3 universal. अब पढ़ेंगे यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का मीनिंग यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ग्लोबली, यूनिवर्सली, यानी सेम सीएसएस इंटरनल में जो भी आपने यूनिवर्सल सीएसएस के थ्रू दिया है, इंटरनल सीएसएस जो यूनिवर्सली अप्लाई किया है, जो भी इंटरनल सीएसएस यानी हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के थ्रू आपने अप्लाई किया है यूनिवर्सली, वो पूरे वेब पेज में अप्लाई होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब यूनिवर्सल का एक सिंबल है,
उस सिंबल के थ्रू आपने इंटरनल CSS जो हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के थ्रू होता है अप्लाई, बार बार बताया है, वो यूनिवर्सल, यानी अगर आपने यूनिवर्सली अप्लाई किया है, उस यूनिवर्सल तरीके से अप्लाई किया है जो मैं बताऊंगी अभी, तो समझ लीजिए कि वो पूरे वेब पेज में अप्लाई होगा। अब सुनिए, होल वेब पेज। Heading level 3 universal selector colon. If the same style is to be applied to the whole web dash page, then universal selector is used and star symbol is used in this type dot. Mostly universal. क्या? स्टार सिंबल इज यूज्ड इन दिस टाइप डॉट, यानी फुल स्टॉप। तो इन दिस यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे स्टार लगाएंगे, फिर लेफ्ट ब्रेस लगाएंगे, और फिर जो भी आपको प्रॉपर्टीज विद वैल्यूज लिखनी है वो लिखेंगे, राइट ब्रेस लगाएंगे। इसमें कोई एलिमेंट वाली सिलेक्टर या ग्रुपिंग सिलेक्टर या आईडी क्लास सिलेक्टर का यूज नहीं रहता है। समझ गए ना? If the same applied to the whole web dash page, then universal selector is used and star symbol is used in this type dot. Mostly universal selector is used with margin and padding dot. Heading level 4 syntax of universal selector Syntax. colon. Less man dot type HTML greater less HTML greater less head greater less title greater universal selector in CSS less slash title greater less style greater star left brace background dash color colon. Pink semi text dash align colon. Left semi color colon. Blue semi right brace less slash style greater less. देखिए, लेस स्लैश हेड ग्रेटर यानी HTML5 का इंडिकेशन टैग, फिर HTML का बेसिक टैग, फिर हेड टैग, फिर टाइटल टैग, टाइटल दिया, टाइटल टैग क्लोज, फिर उसके बाद हेड टैग क्लोज नहीं होगा, स्टाइल Info. Less slash style greater. Right brace. Less style less title greater universal selector in CSS less slash title greater. अब यहाँ Less style greater. लेस स्टाइल ग्रेटर टैग यूज होता है हमेशा, बताया इंटरनल CSS में हेड सेक्शन में। Star. स्टार आया, क्या लगाया? स्टार। कैसे लगता है? शिफ्ट 8 से स्टार लगाया। Left brace. अब लेफ्ट ब्रेस यानी क्या? शिफ्ट के साथ ये लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट और शिफ्ट राइट ब्रैकेट, राइट ब्रेस। Background dash color colon. Pink semi. स्टार लेफ्ट ब्रेस बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, नेक्स्ट लाइन में पिंक सेमी, कोड का कोई यूज नहीं है। Text dash align colon. Left semi. टेक्स्ट डैश अलाइन कोलन लेफ्ट सेमी, Color colon. Blue semi. ये कलर कोलन यानी फोरग्राउंड कलर, ब्लू सेमी, Right brace. राइट ब्रेस यानी ब्रैकेट शिफ्ट राइट ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज। स्टार का मतलब ये कि होल वेब पेज में ये अप्लाई होगा। Less slash style greater. Less slash head greater. Less body greater. Less H1 greater accessibility testing. Less slash H1 greater. Page 3 less B greater accessibility means the ability to pursue the information, so the websites should be developed in such a way that everyone can access them. Less BR greater testing is when we find the accessibility bugs on any website. Less slash D greater. Less H2 greater WCAG. Less slash H2 greater. WCAG। Less B greater WCAG stands for Web Content Accessibility Guideline. Less BR greater they helps in understanding accessibility from the different point of view by considering different disabilities. Less slash D greater. Less slash body greater. Less slash HTML greater. ठीक है जी, तो ये हुआ यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या है इसका? सिंबल स्टार, फिर लेफ्ट ब्रेस, फिर जो भी आपको प्रॉपर्टीज विद वैल्यूज। अच्छा, कोड का यूज कहाँ होता है जब हम प्रॉपर्टीज को वैल्यू के साथ यूज करते हैं? स्टाइल इज इक्वल टू वो इनलाइन CSS में। और बाकी जैसे कि एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसे कि हमने आर्या में करे, लिंक में href करते हैं, जो भी है HTML में जो एट्रीब्यूट किए, जहाँ भी एट्रीब्यूट यूज होता है तो वहाँ एट्रीब्यूट को इक्वल टू करके, जैसे यहाँ स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया था इनलाइन CSS में, फिर वहाँ कोटेशन में देते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनल CSS में नहीं देते हैं। ठीक, यहाँ लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस का इस्तेमाल होता है, जो भी सिलेक्टर है उसका नाम लिखेंगे, फिर लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस, और फिर जो भी आपको जहाँ जो भी प्रॉपर्टीज विद वैल्यू यूज करनी है वो आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल सेलेक्टर का ट्यूटोरियल। अब हम करते हैं नेक्स्ट। Level 3 grouping selector colon. हमने कितने पढ़ लिए? टाइप्स ऑफ सिलेक्टर पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एलिमेंट सिलेक्टर पढ़ लिया, यूनिवर्सल सिलेक्टर पढ़ लिया, और अब पढ़ रहे हैं ग्रुप सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर। Heading level 3 grouping selector colon. ग्रुपिंग सिलेक्टर स्पेलिंग GROUPINGSELECTOR हमेशा सेलेक्टर की स्पेलिंग होती है SELECTOR, और S लगा देंगे तो सिलेक्टर्स। देखिए, To apply same style to different tags or elements, grouping selector is used. Here we write the tag for
क्या है? Heading level 3 grouping selector colon. To apply same style to different tags or elements, grouping selector is used. Dot. Here we write the tag for. क्या आपको अगर सेम ही अप्लाई करना है स्टाइल लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टैग्स में, तब भी आप ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं. Elements together in a single line to those where the same style is to be applied. Dot. Comma is used in. To apply same style to different tags or elements, grouping selector is used. Dot. Here we write the tag for. टैग्स और Elements together in a single line to those where the same style is to be applied. Dot. Comma is used in. Between all the elements. Dot. अब देखिए Heading level 4 syntax of grouping selector colon. सिंटैक्स ऑफ ग्रुपिंग सेलेक्टर. Less than dot type HTML greater. HTML5 का इंडिकेशन टैग. Less HTML greater. फंडामेंटल टैग HTML का. Less head greater. हेड टैग. Less title greater grouping selector in CSS less slash title greater. लेस टाइटल ग्रेटर ग्रुपिंग सेलेक्टर. लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर. Less style greater. लेस स्टाइल ग्रेटर. अब देखो H1 comma P. H1 कॉमा P. पहले एलिमेंट सेलेक्टर में हम क्या यूज कर रहे थे? जैसे P, फिर लेफ्ट ब्रेस, फिर राइट लेफ्ट ब्रेस के बाद प्रॉपर्टीज विद वैल्यू, फिर राइट ब्रेस, फिर दूसरा सेलेक्टर लिया H1 H2 जो भी. लेकिन इसमें क्या किया? H1 कॉमा P या P H1 कॉमा बॉडी, बहुत सारे ले सकते हैं. Less H1 comma P. Less style greater. देखिए H1 comma P. यानी हेडिंग लेवल 1 और P में सेम स्टाइल यूज होगा. क्या? Left brace. लेफ्ट ब्रेस किया. Background dash color colon. Blue semi. बैकग्राउंड डैश कलर कोलन यानी प्रॉपर्टी ब्लू सेमी वैल्यू. Font dash family colon. Arial semi. फॉन्ट डैश फैमिली कोलन यानी प्रॉपर्टी Color colon. Yeah. Font dash family colon. Arial semi. एरियल सेमी क्या वैल्यू. Color colon. Yellow semi. कलर कोलन येलो सेमी प्रॉपर्टी वैल्यू. Right brace. राइट ब्रेस ये H1 और P में यूज हुआ. Less slash style greater. देखा. अब मान लो मुझे ये करना होता है, अभी स्टाइल टैग क्लोज ना करूं, अगर मुझे और यूज करना है तो मैं लिखती बॉडी कॉमा P कॉमा H2. बॉडी कॉमा P कॉमा H2. तो मेरे तीन चीजों में एक पैराग्राफ में तो मेरा वो जो मैंने अभी ऊपर यूज किया है H1 और P में वो यूज होता, और दूसरा पैराग्राफ जो बनाती तो एक P में मेरा और H2 में और बॉडी में वो वैल्यू और मतलब प्रॉपर्टी विद वैल्यू जो मैं लिखती वो यूज होती. ठीक है. जो भी मैं लिखती, जो भी कलर देती, बैकग्राउंड मार्जिन पैडिंग वैडिंग जो भी मुझे देना था. ठीक. Right. Less slash style greater. Less slash head greater. Less body greater. Less H1 greater selectors in CSS less slash H1 greater. जो H1 में अप्लाई होगा कलर स्टाइल वगैरह. Less B greater selectors are used with HTML tags to give style to the tags, comma. They are not simple selectors, comma. Combinator selectors, comma. Pseudo class selectors, comma. Pseudo element selectors and attribute selectors types not. ठीक है. ये H1 और P में सेम स्टाइल अप्लाई होगा. Less slash D greater. लेस स्लैश P ग्रेटर. Less H2 greater simple selectors less slash H2 greater. ठीक है. अगर मैं कोई ग्रुपिंग सेलेक्टर एक और देती, स्टाइल टैग क्लोज नहीं करती, मैं लिखती H2 कॉमा P और मिसाल के तौर पे बॉडी कॉमा H2 बॉडी कॉमा P कॉमा H2 या बॉडी कॉमा H2 कॉमा P, तो फिर वो यूज होता. यानी बहुत दो तीन तरह के एलिमेंट्स में एक साथ आप जो है वो सेलेक्टर यूज कर सकते हैं. उनको कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर. ग्रुप में Less H2 greater simple selectors less slash H2 greater. Less B greater simple selectors are of fine types not less B R greater element selector is used to give different styles to different HTML elements, comma. Universal selector is used when same style is to be applied to the whole web dash page, comma. Grouping selector is used when multiple elements or tags of HTML are to be given the same style, comma. Page 4 class selectors are used when similar style is to be applied to different elements like all H2, comma, all. Paragraphs, comma, etc. Dot and ID selector is used to give a unique style to an element. Dot less slash D greater. अब ये P में वही स्टाइल अप्लाई होगा जो ऊपर के P में हुआ था. अगर मैं बॉडी कॉमा H2 कॉमा P या H2 कॉमा P करती तो एक P में वो जो स्टाइल अप्लाई होता जो ऊपर था जो अभी ग्रुपिंग के थ्रू यूज किया है, और एक P में अगर मैं और करती यूज तो वो यूज होता. लेकिन मैंने एक ही बार किया है H1 कॉमा P, तो ये H1 और P में दोनों में आपका यूज हो गया वही स्टाइल. ये दोनों P में, वरना एक P में अगर मैं चाहती तो अलग कर सकती थी. ठीक है. Less slash body greater. Less slash HTML greater. आई होप सो कि तीनों सेलेक्टर्स में आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. सिंपल सेलेक्टर में हमने 3 पढ़ लिया है. कौन कौन सा पढ़ा है? एक पढ़ा है हमने अभी एलिमेंट सेलेक्टर. दूसरा पढ़ा है हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर जिसका सिंबल स्टार है. फिर हम लेफ्ट ब्रेस देते हैं, फिर प्रॉपर्टीज विद वैल्यू देते हैं, फिर राइट ब्रेस.
जो होल वेब पेज में अप्लाई होता है। और तीसरा हमने पढ़ा है ग्रुपिंग, यानी एक सेम स्टाइल आप 2-3 तरह के एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक? ये सब में भी यूज़ करें तो यूनिवर्सल ही करें, तो इसलिए कहा मैंने 2-3 तरह के एलिमेंट्स में। तो आप मान लो 2 या 3 तरह की स्टाइल सोच लो, जो भी आपको देने हो। जितने पीज़ हैं, जितने H1 है, जितने H2 हैं, H1 तो एक ही होता है, बॉडी है, उन्हें आधा-आधा बाँट दो, ठीक है? या 2-2 ग्रुप करके बना दो, जैसे H1, P बनाया मैंने, आप H1, P, कुछ और बना दो। H2, एक H2 बनाया, एक H2 फिर H2, P कर दिया नीचे, उसमें दूसरा लगा दिया। तो इस तरह आप ग्रुपिंग सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हो। कल हम पढ़ेंगे less/html creator less/html creator हाँ, कल हम पढ़ेंगे क्लास सेलेक्टर। क्या पढ़ेंगे? क्लास। कल नहीं, कल का तो मैंने आज बना के दे दिया आपको, 2 बनाए ट्यूटोरियल। कल हम पढ़ेंगे क्लास सेलेक्टर। आई होप सो। कल नहीं, परसों पढ़ेंगे, तो आपको ये बहुत मज़ा आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।